Hello everyone. So welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss our next topic, which is basically electrical and thermal conductivities properties of a superconductor. So basically in the last lecture we have already discussed about superconductivity, type first and type second superconductor and their basic properties. Now today basically we approach on electrical and thermal properties, and then after that we are going to discuss our next important topic, that is our London's equation. Right. So we start just basic again. Definition of superconductivity. Superconductivity is a quantum mechanical phenomena in which material exhibits zero electrical resistance and para perfect diamagnetism, that is Meissner effect, that we have already discussed below a critical temperature Tc. Now we are going to discuss about electrical properties of a superconductor. So first property of a superconductor, that is electrical properties: zero electrical resistance. So zero electrical resistance in superconductor. Resistivity is zero when temperature is less than critical temperature. Means what they are telling that if your temperature is less than critical temperature, so आपका मटेरियल जीरो रेजिस्टिविटी शो करेगा. मीन्स कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा. नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग करंट फ्लो. persistent current flows indefinitely, explained by Cooper pair formation by BCS theory. BCS theory इसका explanation देता है. Microscopic insight, electrons Cooper pairs. So electron Cooper pair बना लेते हैं जिससे कोई स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग, जिससे रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है. राइट. दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है क्रिटिकल करंट. So maximum current a superconductor can carry without destroying a superconductivity is critical current. A maximum current a superconductor can carry. मैक्सिमम करंट कितना सुपरकंडक्टर कैरी कर सकता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग अ सुपरकंडक्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल करंट, जिसमें जेसी की वैल्यू होती है क्रिटिकल करंट डेंसिटी. जेसी इज इक्वल टू क्रिटिकल करंट डेंसिटी, जिसका फिजिकल मीनिंग होता है हाई करंट ब्रेक्स Cooper pairs. High current breaks Cooper pairs, lead to transition in to normal state. Means high current अगर जैसे तुम्हारा करंट ग्रेटर देन क्रिटिकल करंट हो जाता है तो सुपर कंडक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी और कूपर पेयर ब्रेक हो जाएंगे, जिससे नॉर्मल सुपर कंडक्टर कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल स्टेट, जो हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल करंट. अब इसके बाद लंदन इक्वेशन जस्ट अभी बेसिक आइडिया ले लेते हैं, इसके बाद इनको डिटेल भी में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट लंदन इक्वेशन dg by dt is equal to ns e square by m into electric field. सेकंड लंदन इक्वेशन del cross j is equal to ns e square by m into magnetic field. फिजिकल मीनिंग एक्सप्लेनेशन जीरो रेजिस्टेंस एंड मेसनर इफेक्ट. ये हमारे जो जीरो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और मेसनर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा है. प्रेडिक्ट एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डिके होती है वो भी इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है लंदन इक्वेशन. अब मेसनर इफेक्ट हमने पढ़ लिया, बट एक बार थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया. तो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेल्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपरकंडक्टर इज जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन सुपरकंडक्टर वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ. लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ. फिजिकल मीनिंग सुपरकंडक्टर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेट. डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम परफेक्ट कंडक्टर. Superconductor is a perfect diamagnet, distinguishes it from perfect conductor. Superconductor is a perfect diamagnet and distinguishes it from perfect conductor. Thermal properties में हमारे पास एक तो है एंट्रोपी इन सुपरकंडक्टर. अब थर्मल, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है, अब उसके बाद हम थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरकंडक्टर में जैसे सबसे पहले एंट्रोपी इन सुपरकंडक्टर इज लेस देन नॉर्मल कंडक्टर, बिकॉज superconductor is generally in ordered state. Why? Because Cooper's pairs are formed, no scattering is going to be formed. So that's why सुपरकंडक्टर की एंट्रोपी कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर के कंपैरिजन में. सो
entropy of a superconductor is less than the entropy of normal conductor. So S is the entropy in superconducting state, S an entropy in normal state. Physical meaning, superconductivity superconducting state is more ordered. Formation of Cooper pairs reduces randomness. मीन्स कूपर पेयर फॉर्मेशन होने से रेंडमनेस डिक्रीज हो जाता है. अगली प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी. at T is equal to Tc, heat capacity show discontinuity. So heat capacity of a superconductor is greater than heat capacity of normal conductor. So BCS result, low temperature behavior. So heat capacity is exponentially minus delta upon kBTC. और हमने पढ़ा था जब नॉर्मल कंडक्टर में सुपर कंडक्टिविटी, नॉर्मल कंडक्टर में जो हीट कैपेसिटी होती है वो एक्चुअल में, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं. जो हमारा नॉर्मल कंडक्टर होता है उसकी हीट कैपेसिटी क्या होता है, AT प्लस BTQ. और ये नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है, AT प्लस B एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा अपॉन KBT. ये तुम्हारी सुपर कंडक्टिंग की हो जाएगी, राइट. सो इसका फिजिकल मीनिंग हम समझे. सो एनर्जी गैप डेल्टा सप्रेसेस एक्साइटेशन. एक्सपोनेंशियल डिके इंडिकेट्स क्वांटम नेचर. सो थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी हम इसको देखें. सो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस डिजास्टिकली बिलो TC. थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस डिजास्टिकली बिलो TC मींस temperature less than TC, thermal conductivity decreases drastically below TC. So हम कह सकते हैं thermal conductivity of a normal conductor is greater than thermal conductivity of superconductor. ऐसा इसलिए होता है कि कूपर पेयर अपने साथ हीट को फ्लो ही नहीं होने देते और नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हीट को फ्लो करने देते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ normal conductor is greater than thermal conductivity of superconductor, right. So Cooper pair do not carry entropy and heat carried only by quasi particles, that is phonons. Physical meaning, reduce heat transport due to energy gap means heat transport कम हो जाता है ड्यू टू एनर्जी गैप. कंफर्म्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग मैकेनिज्म. ये कंफर्म करता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग मैकेनिज्म को. एनर्जी गैप डेल्टा T is less than delta T means energy gap does not equal to 0 when temperature is less than critical temperature. So delta 0 is equal to 1.76 kBTC. So ये minimum energy required to break Cooper pair. So energy gap ये हमें एक आइडिया देता कि हमें कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कूपर पेयर को तोड़ने के लिए. कूपर पेयर टूट जाएगा तो वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट को ब्रेक कर जाएगा. रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज. सो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी. एक तो हमारी सबसे पहली थर्मल प्रॉपर्टी एक एंट्रोपी इन सुपरकंडक्टर. एंट्रोपी ऑफ अ सुपरकंडक्टर इज मोर ऑर्डर एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर. फिर हीट कैपेसिटी ऑफ सुपरकंडक्टर इज ग्रेटर देन नॉर्मल कंडक्टर, बट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉर्मल कंडक्टर इज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सुपरकंडक्टर. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैरी हीट बट कूपर पेयर अपने साथ हीट कैरी नहीं कर पाते, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है सुपर कंडक्टर की एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर, राइट. अब इसकी समरी हम देख लेते हैं. इसकी समरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडक्टर के लिए फाइनाइट होता है, सुपर कंडक्टर के लिए 0. एंट्रोपी नॉर्मल स्टेट के लिए हाई होती है, सुपर कंडक्टर के लिए लो. हीट कैपेसिटी नॉर्मल स्टेट के लिए कंटिन्यूअस होती है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए डिसकंटिन्यूट एट T इज इक्वल टू TC. थर्मल कंडक्टिविटी नॉर्मल स्टेट के लिए हाई होती है बट सुपर कंडक्टिंग के लिए कम होती है. एनर्जी गैप नॉर्मल स्टेट के लिए 0 होता है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए फाइनाइट होता है. सो कंक्लूजन में इससे कह सकते हैं सुपर कंडक्टिविटी इज कैरेक्टराइज बाय 0 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मींस परफेक्ट कंडक्शन, एनर्जी गैप फॉर्मेशन, reduce entropy and thermal conductivity, discontinuous in heat capacity. These properties arise due to Cooper pair formation and quantum coherence, right. So हमने
इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपना नेक्स्ट टास्क है लंदन इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको हम फर्स्ट लंदन इक्वेशन और सेकंड लंदन इक्वेशन दोनों को फिजिकल मीनिंग के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। सो लंदन इक्वेशन बेसिकली हमारी जो प्रॉपर्टीज है उन सबको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। और सुपर कंडक्टिविटी को सबसे पहले कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई थी, वो लंदन इक्वेशन ही थी, राइट। सो लंदन इक्वेशन are the two phenomenal equation proposed by Fitz London and Hans London in 1935 to explain electrodynamic properties of superconductor. They describe zero electrical resistance and expulsion of magnetic field, that is Meissner effect. Means सुपर कंडक्टिविटी में जो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर एक्सपेंशन होता है, इसको एक्सप्लेन सबसे पहले लंदन इक्वेशन ने एक्सप्लेन करा था। हम उसको ही समझते हैं लंदन इक्वेशन क्या है। हमें लंदन इक्वेशन क्यों जरूरत है? क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ओम्स लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, मेसनर इफेक्ट, एक्सपेंशन। Thus, a new theory was required to explain these. So, explain superconducting current behavior. ये थ्योरी एक्सप्लेन करेगी सुपर कंडक्टिंग करंट बिहेवियर को, डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेशन, अकाउंट फॉर मेसनर इफेक्ट, राइट। अब इस थ्योरी को जब बना रहे तो हम इसमें क्या क्या एज्यूप्शन लेके चले? सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विदाउट रेजिस्टेंस, करंट इज कैरिड बाय सुपर कंडक्टिंग electron density, current is carried by superconducting electron density, no scattering or energy loss, macroscopic quantum coherence exist, macroscopic quantum coherence exist करता है। सो अब सबसे पहले फर्स्ट लंदन इक्वेशन हमारे पास। सो फर्स्ट लंदन इक्वेशन dj by dt is equal to ns e square by m into इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। हमें पता है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, जैसे हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास फोर्स लगता है, जिसको हम फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और m dv by dt इज इक्वल टू माइनस चार्ज e इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। सो ns e m, हम यहाँ NSE और यहाँ भी NSE से वो मल्टीप्लाई कर देते हो, NSE m dv by dt is equal to minus ns means superconducting density of superconducting electron, ns e square e, since current density J is equal to ns ev, so J is equal to ns ev, so dj by dt is equal to ns e square by m into electric field। so इसका फिजिकल मीनिंग हम समझें। सो फिजिकल मीनिंग क्या होगा? करंट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। ये इक्वेशन में पता था dj by dt इक्वल टू ns e स्क्वायर by m इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारी फर्स्ट लंदन इक्वेशन है। फर्स्ट लंदन इक्वेशन है। सो करंट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और दूसरा है कि नो रेजिस्टेंस, मींस कोई सुपर कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो वो होगा जो कोई करंट कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो परसिस्टेंट करंट होगा। सेकंड लंदन इक्वेशन डेल क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ns e स्क्वायर बाय m इनटू मैग्नेटिक फील्ड, डेल क्रॉस e इज इक्वल टू minus del v by del t, taking curl of first London equation, so del cross dj by dt is equal to ns e square by m del cross e vector, means हमने इसका भी कर्ल ले लिया और एक मिनट, taking the curl of first London equation, means first London equation हमारी है dj by dt ns e square by m, इसका कर्ल हमने लिया, सो इसका कर्ल लेंगे। देन आफ्टर दैट डेल क्रॉस dj by dt ns e स्क्वायर बाय m, जो कि हमें पता है डेल क्रॉस e इज इक्वल टू माइनस डेल b by डेल t लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा। फिर इसके बाद हमें पता फर्स्ट लंदन इक्वेशन dj by dt इज इक्वल टू माइनस ns e स्क्वायर बाय m इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्हें क्या करें,
कर्ल लिया दोनों साइड, सो डेल क्रॉस डीजे बाय डी टी इज इक्वल टू एन एस ई स्क्वायर बाय एम डेल क्रॉस ई, और डेल क्रॉस ई की जगह हमने लिख लिया माइनस डेल बी वाई बाय डेल टी। सो डेल क्रॉस जे इंटीग्रेट करा और या फिर डेल वेक्टर को बाहर निकाल लिया, सो डेल क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन एस ई स्क्वायर बाय एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी सेकेंड लंदन इक्वेशन है, सेकेंड लंदन इक्वेशन। फिजिकल मीनिंग हमें ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सुपर कंडक्टर, एक्सप्लेन्स मीसनर इफेक्ट, मीसनर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाई। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड expelled from superconductor means magnetic field inside superconductor does not pass, means they going to be expelled, और जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर पाए। सो इसी बेसिस पे हम एक लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ भी इसी से डिफाइन करते हैं, फ्रॉम सेकेंड लंदन इक्वेशन एंड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा एल स्क्वायर into magnetic field. So 1 upon lambda L is equal to m under root m upon mu naught ns e square, mu naught ns e square, mu naught ns e square. So इसका फिजिकल मीनिंग हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिकेज एक्सपोनेंशियली इनसाइड सुपरकंडक्टर, मींस इनसाइड सुपरकंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डिके करता एक्सपोनेंशियली, और लैम्डा एल इज द पेनिट्रेशन डेप्थ, मींस पेनिट्रेशन डेप्थ हमें बताता है कि ये कितने अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपरकंडक्टर जा सकती है। सो इसको इक्वेशन हमने डिफाइन करा, बी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एल। की फिजिकल इंटरप्रिटेशन, सुपर कंडक्टिविटी सो जीरो रेजिस्टिविटी, करंट परसिस्ट indefinitely, magnetic field decay exponentially inside material, explains Meissner effect completely, Meissner effect को जो completely explain कर पाए। इस थ्योरी की लिमिटेशन हम क्या है, तो phenomenal नॉट माइक्रोस्कोपिक नहीं है, कैन नॉट एक्सप्लेन ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना हमारा T इज इक्वल टू TC, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नो क्वांटम मैकेनिकल ओरिजिन, लेटर ये सब जो प्रॉब्लम है इनको हम BCS थ्योरी के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंटरव्यू के लिए हमें याद रखने हैं उनको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जिस समय दिमाग में रहे। लंदन इक्वेशन एक्सप्लेन्स मेसनर इफेक्ट, प्रेडिक्ट पेनिट्रेशन डेप्थ, सो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी इज नॉट इनफ फॉर infinite, shows that infinite conductivity is not enough for superconductivity, magnetic field expansion is a key property, right? लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ मेसन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए, पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में बता पाया, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी इज नॉट इनफ फॉर सुपर कंडक्टिविटी के बताया, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेंशन जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसको भी इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। सो आई होप कि हमने सुपर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और फर्स्ट लंदन इक्वेशन और सेकंड लंदन इक्वेशन और इनके फिजिकल मीनिंग और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन कर पाई और क्या क्या इसकी लिमिटेशन रही, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सुपर कंडक्टिविटी की और थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फिर जो चीजें रह गई हैं। एक तो हमारा सबसे पहले BCS थ्योरी रह गया, DC जोसेफसन इफेक्ट वगैरह भी रह गया, और भी प्रॉपर्टीज जो रह गई हम उन सबको डिस्कस कर लेंगे एक बार, राइट? सो आई होप कि यू आर एबल टू एंजॉय माय लेक्चर एंड हाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे होंगे। Just one request from my side कि please like and subscribe my YouTube channel and share with all your friends who are preparing for interviews purposes, and I make all these videos particularly for interview oriented, because when I'm preparing for the interview now there is no one is guiding me and no one is like giving the idea that how to prepare for interviews and how you will revise the important topics. So that's why I make the lecture particularly for interviews, and then after that I make the question and then their explanation, how to give the explanation, and generally the question which I am discussing in the lectures now, you see in the in interviews generally they will ask that question only, right? So we will meet in the next lecture.